آپ کا عورت مارچ کے بارے میں جو ہے نا یہ جو ایک تحریک چل پڑی ہے, کیا کہنا ہے آپ کا؟ سب کا اپنا پوائنٹ آف ویو ہے, اوکے, سب اپنی فریڈم رکھتے ہیں اپنا پوائنٹ آف ویو سامنے رکھنے میں. اپنا پوائنٹ آف ویو رکھنے میں کوئی برائی نہیں ہے, دوسرے کے پوائنٹ آف ویو کو غلط کہنے میں برائی ہے. میری نظر میں سب کا اپنا ایک نظریہ ہے چیز کو دیکھنے کا. آپ کی نظر سے مائک آپ کو ایسے نظر آ رہا ہے, مجھے ایسے نظر آ رہا ہے, نہ آپ کا نظریہ غلط ہے نہ میرا نظریہ غلط ہے. جہاں آپ کو لگتا ہے کہ کسی کی تذلیل ہو رہی ہے وہ غلط ہے, جہاں آپ کو لگتا ہے کہ آپ کسی کے بارے میں کسی کے بہاف پر بات کر رہے ہیں جب کہ آپ کو وکیل نہیں بنایا گیا وہ غلط ہے. سو پوائنٹ از اونلی کہ میں اپنے ریڈیس میں رہتے ہوئے کیا کام کر رہی ہوں, اور وہ میں اس سے مطمئن ہوں. کیا وہ اس سے مطمئن ہے جو وہ کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, اوکے فائن. لیکن اگر وہ میرے ریڈیس کو ٹچ کرے گا, میرے اورا کو ٹچ کرے گا, میرے ٹرائب میں آئے گا, تب میں آواز اٹھاؤں گی. تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ جہاں ہم برابری کی بات کرتے ہیں تو برابری تو اس لیے نہیں ہو سکتی کیونکہ اللہ پاک نے عورت کو بہت اسٹرانگ بنایا ہے. میں یہی کہتا ہوں کہ مرد سے تو کئی گنا زیادہ اسٹرانگ ہے. ایموشنلی اسٹرانگ وہ ہے, ملٹی ٹاسکنگ وہ کر سکتی ہے, انسان پیدا وہ کر سکتی ہے, جو کہ اب سائنس بھی کرنے کی کوشش کر رہی ہے, لیکن وہ قدرت سے کر رہے ہیں, ٹکراؤ کر رہے ہیں. بٹ دین اگین قدرت سے ہمیشہ جس نے بھی ٹکراؤ کیا اس نے منہ کی کھائی ہے نا. پوائنٹ از کہ عورت کو اللہ نے بنایا ہی اسٹرانگ ہے. وہ اپنی اسٹرینتھ کو اگر بھول گئی ہے تو عورت کو خود کو یاد کرنے کی ضرورت ہے کہ میں بہت اسٹرانگ چیز بنائی گئی ہوں جو میرے رب نے مجھے اسٹرانگ بنایا ہے. عورت اور آدمی دونوں ایک دوسرے کے لیے بہت ہی بیلنسڈ اللہ کی طرف سے اتارے گئے, اللہ کی طرف سے اتارے گئے ہیں. اور یہ خوبصورتی ہے, یہ خوبصورتی ہے. اب اس خوبصورتی میں سب سے خوبصورت چیز اس کی عزت کرنا اور عزت دینا ہے. رسپیکٹ ضروری ہے, بہت ضروری ہے, اور ڈیلی بیسس پہ اور آورلی بیسس پہ اور منٹس وائز آلسو, ہر پل جہاں یاد آئے وہاں اپریشیٹ اپنے بہن بھائی, اپریشیٹ کریں اپنے ماں باپ کو, اپریشیٹ کریں اپنے اسپاؤس کو, اپریشیٹ کریں اپنے بچوں کو, اپریشیٹ کریں اپنے کولیگس کو. آپ ایک کولیگس پہ جا رہے ہیں اور آپ کی کوئی فیمیل کام کر رہی ہے تو ایسی کمنٹ دیں, یار میری وائف گھر پر ہوتی ہے, آپ بچے بھی دیکھتے ہو, آپ ہسبینڈ بھی دیکھتے ہو, آپ کام بھی دیکھتے ہو, یہ کوڈوز یار, زبردست یار, کرتے ہوئے جاؤ اور دیکھو پھر آپ نے اس کو کتنی عزت دے کر, اب اس کے دل سے کتنی دعائیں نکلیں گی اس کے لیے. یار عزت ہی تو چاہیے. اس سے تو میں ایگری کرتا ہوں, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. لیکن یہ جو سلسلہ چل رہا ہے, میں اس کے بارے میں پوچھ رہا تھا کہ اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے. میں اس سلسلے کی طرف دیکھتی نہیں ہوں. اوکے, امپورٹنٹ ہوتا تو دیکھتی, اپنی انرجی ضائع کرتی, اپنی نظریں ضائع کرتی, اپنا دماغ ضائع کرتی. جو امپورٹنٹ نہیں ہے میں دیکھتی نہیں ہوں. خلیل الرحمان قمر صاحب کا کوئی اسکرپٹ اگر آپ کو آفر ہو تو کریں گی؟ ڈپینڈ کرتا ہے ڈائریکٹر کون ہے اور ان کا انفلوئنس کتنا ہے. ٹھیک ہے, کیونکہ وہ ایک اچھے رائٹر ہیں. چلے ڈائریکٹر اگر جو ہے نا بدر بھائی ہو, کروں گی, دبا کے کروں گی. بدر بھائی کریں گے تو کروں گی, مجھے پتا ہے کہ وہ اچھے ڈائریکٹر ہیں. میسم بھائی کریں گے میں کروں گی. میرا بھی خلیل صاحب کے بارے میں جو ہے نا ایک وہ ہے, میرے بھی ان سے بہت ساری چیزوں پہ اختلاف ہے. ہو سکتا ہے, آپ انسان ہیں, نظریہ اختلاف مجھے بھی ہے, رائے بھی ہونی مجھے بھی ہے, بہت ساری چیزوں پہ اختلاف ہے. لیکن جو ان کا جملہ ہے نا, جو ان کا قلم چلتا ہے, ان جیسا قلم کسی کا نہیں چلا. دیکھیں وہ ان کو اللہ نے ان کو ایک ہنر دیا ہے, ان کو ایک نظر دی ہے. اگر وہ لکھتے ہیں جو وہ لکھتے ہیں اور آگے ایسی کوئی چیز آتی ہے اور ڈائریکٹر اچھا ہوگا تو آئی ایم اے ڈائریکٹرز ایکٹر. مجھے ڈائریکٹر جس طرح لے کے چلے گا میں اس طرح کام کروں گی. ٹی وی ہے بھی ڈائریکٹرز میڈیم, بالکل ایسا ہی, ڈائریکٹر لے کر چلے گا. ابھی ہم جو ہے نا آ رہے ہیں اپنے نیکسٹ راؤنڈ کی طرف, جس کا نام ہے کلیشن کوپ راؤنڈ. اچھا ٹھیک ہے, کلیشن کوپ راؤنڈ ریپڈ فائر راؤنڈ ہوتا ہے ہمارا. میں آپ سے جو ہے نا بس یہ سوال پوچھنے لگا ہوں, کیا شہباز شریف ملک کو بچا سکتے ہیں, ہاں کہ نہ؟ کیا کبھی کسی کو اسٹار کے ساتھ انکمفرٹیبل محسوس کیا اور آپ کو لگا کہ یار اس کے ساتھ دوبارہ کام نہیں کروں؟ نام لینا چاہیں گی؟ نہیں. اچھا, سب سے عجیب نک نیم جو کسی نے دیا ہو؟ بہت سارے ہیں, پھر بھی ایک جو ٹاپ آف دا لسٹ. ہانیہ کوچی موچی, کبھی کوئی مایو. مایو, ہاں مایو,
माइयों के बाद फिर बारात, हाँ फिर बारात नहीं, वलीमा। माइयों के बाद फिर मेहंदी, मेहंदी के बाद बारात, बारात वलीमा, वलीमा चौथी, चौथी फिर खानदान की दावत है। सबसे यूजलेस मशवरा, सबसे यूजलेस मशवरा जो आज तक किसी ने दिया। तुम एक काम करो, तुम ना नहार मुंह एप्पल साइडर विनेगर गर्म पानी में एक चमचा लेकर पीना शुरू कर दो। बात सुने, अरे भाई, ये मैंने भी कुछ 1 हफ्ता 10 दिन पिया था, ये मुझे किसी ने मशवरा दी, ये सही चीज नहीं है। आज के वक्त में कोई किसी को मुफ्त में बुखार नहीं देता, मशवरा क्यों देते? नहीं, मुझे किसी ने बोला था कि ये पियो, लेकिन फिर मेरे को डॉक्टर ने मना किया कि स्टमक के लिए सही नहीं है। भैया हर चीज हर एक के लिए नहीं होती है। हाँ। कॉफी, ब्लैक कॉफी नहीं पीनी चाहिए। रिसर्चेस साबित कर रही हैं ब्लैक कॉफी आपके लिए हेल्दी नहीं है। लेकिन यहाँ पे तो फैशन है। हाँ तो अब फैशन नंगे होने का हो जाएगा तो हम क्या नंगे हो जाएंगे? तो वो तो रहे आहिस्ता आहिस्ता इधर उधर। होने दो, हाँ। उसका मसला नहीं है। हाँ। लेकिन फैशन अपनी खुशी के लिए होना है तो हो। अच्छा, यूजलेस मशवरा ये है कि भाई ये भाई हर चीज हर एक के लिए नहीं है, हर एक को मशवरा मत दिया करें। आप ना एक काम करें, अपनी नाक के बाएं जानिब एक नीले रंग के पेन का तिल लगाना शुरू कर दें। क्यों लगाना शुरू कर दें? अच्छा, क्यों लगाएं? जैसे जुबैदा आप अभी एटम बम बनाने के वो बताती थी। आई नहीं, वो तो जानू अल्लाह बख्श, वो बहुत स्वीट थी, उनके साथ मैंने बहुत काम किया। आपने भी बहुत काम किया और इतना मजा आता था उनके साथ। बहुत स्वीट थे। मैं बहुत तंग भी करता था उनको। हम सब तंग करते थे, हम सब, जानू थी हमारी। हाँ। अच्छा, ये बताएं कि पैमरा का रिमोट अगर एक दिन के लिए आपके हाथ लग जाए तो सबसे पहले आप क्या चीज बैन करेंगे और किस चीज की इजाजत दे देंगी? सबसे ज्यादा मैं बैन करूंगी टिपिकल फैमिली सियासतों, नेगेटिविटी, टॉक्सिसिटी को ड्रामों में दिखा दिखा कर हमारी सोसाइटी में बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो रहा है उसका। Okay. ठीक है, और मैं फिर चाहूँगी कि अनकही जैसे, धूप किनारे जैसे, तन्हाइयाँ जैसे या आजकल जो परवरिश है उस जैसे ड्रामे बनाए जाए जिसमें सब लोग बैठ कर अपने घर वालों के साथ देख और सकें। उससे लोग सीखते थे। सड़कें बंद हो जाती थी। मैं बातें कितनी अच्छी कर लेती हूँ ना। ये बात बिल्कुल सही है। कभी कोई स्क्रिप्ट पढ़कर दिल में आया हाँ। कि ये क्या लिख दिया है यार, मैं नहीं कर रही हूँ, मैं घर जा रही हूँ? नहीं, घर वर नहीं जाती, काम है, काम में आपको इख्तलाफ होता है। स्क्रिप्ट्स अभी भी होती हैं, अभी भी शूट कर रही हूँ, बहुत सारी चीज़ें अभी भी समझ में नहीं आती, या कभी कभी राइटर को भी मार्जिन देना चाहिए, उसके ऊपर भी बहुत प्रेशर होता है। पता नहीं उन्होंने उस वक्त लिखा हो तो कोई ग्रामर या कोई चीज़ या कोई तो फिर चेंज कर देते हैं। मैं इतना लीवरेज होता है। बिल्कुल लिबर्टी होती है और अच्छे एक्टर्स और अच्छे डायरेक्टर्स ये देते हैं। अच्छा, जो एक हमारा एक जो टिपिकल सा सवाल होता है कि कश्ती में आप जा रही हैं, आपके पास 2 लाइफ जैकेट हैं और आपने एक लाइफ जैकेट खुद पहनी, एक साथी को देनी है। आपके पास जो है ना 3 जो है ना एक्टर्स आपके साथ सफ़र कर रहे हैं, एक को बचाना है, 2 को डबोना है। एक है फाद मुस्तफ़ा, एक है जावेद शेख और एक है शमून अब्बासी। किसको लाइफ जैकेट देंगी आप? अच्छा, हम 2 की जगह 3 लाइफ जैकेट कर लेते हैं। 2 की जगह तो जो की जगह 3 कर लेते हैं। 3 कर ले। हाँ 3 चलो, कर ले, 3 ठीक है। की है। 3 लाइफ जैकेट हो गया तो एक को डूबना पड़ेगा। एक को अगर डबोना ठीक है। अच्छा, मैं तीनों को बचा लूंगी। ये नहीं करो। बताऊं ये नहीं क्यों? करो। हाँ। बताऊं क्यों? मेरे पास फोन होगा ना, सोशल मीडिया पे जाऊंगी कि प्लीज सेव मी, आई एम गोइंग टू ड्राउन। मेरे पास चारों तरफ से हेल्प आएगी, मैं सोशल मीडिया पे फिर वायरल हो जाऊंगी। नहीं, ये बड़ी आपने चालाकी के साथ जो नहीं जो है, ये जो यही कन्नी तो, पकड़ी है ना। तो यही तो है। नहीं। लाइमलाइट ले लूंगी इन तीनों से लाइमलाइट। शगुन भाई से भी लाइमलाइट ले लूंगी, फादी से भी ले लूंगी, जावेद अंकल से भी ले लूंगी। तो लाइमलाइट का क्या, जब जिंदगी नहीं बचेगी तो लाइमलाइट आपको क्या पता? अच्छा, जब मैं कश्ती में होंगी और फ़ोन मेरे पास होगा और कहीं ना कहीं तो नेटवर्क आ रहा होगा, सोशल मीडिया पे जाएगा, तो मैं स्टार बन जाऊंगी। अच्छा। हाँ, और फिर लोग मुझे ना फिर मेरे हेडर्स चलेंगे और फिर मैं मशहूर हो जाऊँ। कसम से ये चालाकी जो है ना, ये इसका मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। चलो ठीक है, अगला सवाल करता हूँ। अगर आपको किसी वक्त में किसी का फ़ोन उठाना हो, हाँ। काटना हो और बिजी करना हो, तो आप किसका इन तीनों में से जो है ना फ़ोन उठाएंगी, काटेंगी और बिजी करेंगी? Okay. ठीक है। आपके पास 3 नाम है, जवेरिया सऊद, निदा यासिर और नादिया खान। ठीक है, नादिया खान का फ़ोन क्या उठाऊंगी और एक का फ़ोन उठाना है, हाँ। एक का बिजी करना हाँ। है, एक का काटना है। अच्छा ठीक है, नादिया का बिजी कर दूंगी। अच्छा, ठीक है, नादिया खान जी का बिजी कर दूंगी, क्योंकि उनसे मेरी इतनी ज़्यादा बातचीत नहीं है। ठीक कभी है। कभी मुलाकात सही होती है। है,
तो आई डोंट हैव टू जस्टिफाई. सही है. काट दूंगी जवेरिया का, बिकॉज जवेरिया ने उनके साथ काम किया है अभी एक सीरियल में, तो उनको पता होगा कि हाँ ये कॉल बैक कर लेगी, कहीं जरूरी काटा होगा. अटेंड किसका करूंगी? निदा का, बिकॉज निदा का मुझे कॉल जब भी आएगा जब कोई जरूरी बात हो. जरूरी काम हो. और बाकी के जवेरिया सऊद जो है ना ऐसी करती रहती है पूरी. नहीं वो काट दूंगी इसलिए कि मैं बाद में कभी कॉल कर लूंगी. वो मान जाएंगी. दोस्ती यारी ऐसी है. हाँ मतलब जाहिर काम वाम किया है, साथ में अंडरस्टैंडिंग है, प्रोफेशनल इंसान हूँ मैं. काटूंगी तो कोई वजह होगी ना. और वो भी बड़ी मस्ती खोर है, उनके साथ भी बड़ा मजा आता है काम करके. वो मस्ती है उनके अंदर बहुत. ठीक है. अच्छा, दिन का आगाज चाय से होता है या इंस्टाग्राम से? इंस्टाग्राम से. ओके. एक मशवरा जो सबको देती हैं लेकिन खुद कभी नहीं मानती हैं. पहले अगर आप पूछते तो हाँ ऐसे मैं जवाब दे सकती थी, लेकिन अब नहीं. अब मैं वो कोई मशवरा नहीं देती जो मैं खुद ना मानूं. ओके. अच्छा जी. अच्छा, एक दिन के लिए सच अगर बोलना है ना? हाँ सच बोलना है. अगर एक दिन के लिए आपको कोई अदाकारा बनना पड़े तो किसका रूप धारेंगी? रूही बानो. रूही बानो? इतने पुराने उधर जारी. रूही बानो, खालदा रियासत. औरत खालदा रियासत. ओके. अगर एक हफ्ते के लिए सोशल मीडिया पर ब्लॉक करने की मुकम्मल आज़ादी हो तो किन 3 लोगों को सबसे पहले ब्लॉक करेंगी? ऑप्शन नहीं है. ऑप्शन नहीं है. किन 3 लोगों को सबसे पहले ब्लॉक करूंगी? कोई भी हो सकता है. कोई भी. रबाब है, मेरी बहन भी है, मेरी दोस्त भी है, उसको ब्लॉक कर दूंगी क्योंकि वो बहुत मस्ती वाली वीडियोस भेजती है. मैं सीरियस भी कोई काम कर रही होंगी ना उसमें भी वो कर देगी. एक राबिया कुलसुम को ब्लॉक कर दूंगी. वो डांस वाली वीडियो भेजती है. वो डांस वाली नहीं, टेढ़ी मेढ़ी शक्लें बनाई करके वीडियोस भेज देगी मुझे, मैं उसको ब्लॉक कर दूंगी. ठीक है. और हाँ, क्योंकि ये वो लोग हैं जिनको मैं इंस्टाग्राम पे ब्लॉक कर भी दूं, जिंदगी से ब्लॉक थोड़ी कर सकती हूँ. ये वो लोग हैं. फैजान और कुलसुम. और तीसरा नवीद रजा. अच्छा. मेरे को चुन के ऐसी वीडियोस भेजता है जो मतलब मैं कहती हूँ ये कहाँ से वीडियोस लेकर आता है. नवीद रजा का नाम जैसे ही आपने लिया मेरे को क्यों निकला आपने कि नवीद रजा मेरे को चुन के ऐसी एक वीडियो भेजी जिसकी बेचारी के जो चिन्ह यहाँ थी, तो किसी ने कहा ये नोज जॉ, ये जॉ लाइन नहीं है, ये स्टेडियम लाइन है, ये फुटपाथ लाइन है, ये हाईवे लाइन है. मतलब मुझे समझ नहीं आता, इस किस्म की वीडियोस भेजते हैं ये तीनों मुझे कि मैं बता नहीं सकती. और हमारे यहाँ आपस में आरेज और मेरा और मेरी पूरे क्लोज फ्रेंड्स में हम सब एक दूसरे के साथ फार्ट्स के मजाक बहुत करते हैं कि पेट में दर्द हो रहा है, क्या हुआ, फार्ट रुका हुआ है. तो आरिस कहता है ये क्या ऑब्सेशन है फार्ट्स का. मैंने कहा क्यों आप नहीं करते? तो आरिस के पास कोई जवाब ही नहीं रहता. सब करते हैं. वो थोड़ा सा शर्मीला भी है. थोड़ा कोई शर्मीला नहीं है. खुल गया है माशाल्लाह. हम सब माशाल्लाह रच के बहुत शदीद हैं. वेरी नाइस. अच्छा, कभी सेट पर किसी का बुरा मेकअप या बुरा वार्डरोब आपको मिला हो और आपने बोला यार ये मेरा क्या कर दिया इसने? मिलते हैं, बुरे कपड़े मिलते हैं. और कुछ कपड़े ऐसे भी जाते हैं कि जो सबसे लंबी कंटिन्यूटी बन जाते हैं और वो इतने बुरे कपड़े होते हैं और वो इतनी बड़ी कंटिन्यूटी बनते हैं कि उसके कपड़े सीन होते मैं किचन से निकली, किचन के बाद लॉन्च में आई, लॉन्च के बाद बाहर निकली, बाहर के बाद लॉन में गई, लॉन में वापस आई. हाय 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 हाय. दिल चाहता है फिर एंड में उन कपड़ों को हम फाड़ते हैं. हाँ, वो पोछा बना ले. नहीं फाड़ते हैं, बाकायदा हम सेरेमनी करते हैं उन कपड़ों की कि हम उनको फाड़ेंगे. सही है. ऐसे ही. अच्छा, एक सेगमेंट है अभी हमारा कि मुहावरा आपने पूरा करना है लेकिन गलत. अच्छा ठीक है. ओके. मिसाल के तौर पे नाच न जाने चौपट राजा के बोल. अच्छा ठीक है. तो कोई भी आपने मिलाना है आगे. तो चले जी. पहला है ऊंट के मुंह में घास लेट. अंधा क्या जाने सनशेड. चोर की दाढ़ी में खुस्सा. हाँ. चोर की दाढ़ी में खुस्सा. तो कैसा अजीब सा लग रहा होगा. गीदड़ की मौत आती है तो वो सास के पास भागता है. अपनी सास के पास भागता है. ये गीदड़ की बात हो रही है, इंसान की नहीं. सास तो सबकी होती है ना. सास होती है. सास है तो सास है. बिल्कुल ऐसा ही. नाच न जाने कुतुबुद्दीन. हाँ. नाच न जाने कुतुबुद्दीन. ये नए मुहावरे आपको कैसे लगे प्लीज अपने कमेंट में जरूर हमें बताइएगा. माया जी, आपने जो है ना
देखिए मैं भी आपका अगर बोलूँ ना कि आप एक माशाल्लाह से ऑलराउंडर है और अल्लाह पाक आपको ऐसे ही रखे, टीवी हो, उसके बाद ये लाइव शोज हो, मॉर्निंग शोज हो, ट्रांसमिशन हो, और अब जो है ना आप आहिस्ता आहिस्ता बिजनेस की तरफ भी आ रही हैं, अपना साइड का बिजनेस भी चला रही है, माशाल्लाह से अल्लाह आपको कामयाब करे Thank उसमें। you, thank you. उसके बारे में क्या क्या आपने एक जो नई प्रोडक्ट जो है ना आपने जो इंट्रोड्यूस कर रही हैं, ये मी फर्स्ट, ये मी कैसे आपने इसका नाम रखा और इसमें क्या क्या चीज़ें आपने, रेंज क्या है आपकी? बॉस वैसे तो ये करना नहीं था आपने, ये आपके लिए तोहफा था, लेकिन नहीं थैंक यू, लेकिन मैं देखिए लोगों को एक अच्छी चीज बताना भी, ये इसमें कोई मार्केटिंग उसकी बात हाँ, नहीं है, बिल्कुल लेकिन ऐसे ये है। कि कोई अच्छी चीज उन तक पहुंचने भी, ये अच्छा। भी तो खिदमत है ना। 2021 में मुझे कोविड डेल्टा और कोविड के डेल्टा के साथ टाइफाइड हुआ था, और मैं 3 दिन तक गॉन थी। अच्छा। डॉक्टर्स ने कहा था इनका केस बिगड़ चुका है, हाँ, और मैं तकरीबन जा चुकी थी और मुझे होश नहीं था। और ये कौन से सन की बात? 2021। 21। क्योंकि 2020 में कोविड बहुत पीक पे था, हाँ। और हमें थोड़े छोटे मोटे वायरल्स होते थे और मैं काम कर रही थी। 21 में तो बस फेड होना शुरू हो गया हाँ, था। तो 2021 के मई जून में मुझे कोविड डेल्टा हुआ और टाइफाइड दोनों साथ हो गया, और वो इतना खौफनाक था कि मैंने आज तक कभी इस तरह का कोविड ना सुना ना देखा। लेकिन डॉक्टर्स या जिनको पता है, जिनको हुआ है, उनको पता है कि कोविड डेल्टा सबसे एक्सट्रीम कोविड डेल्टा की एक वो थी स्टेज और लेवल। 3 दिन के बाद जब मुझे होश आया तो मैं अपने कमरे में ही थी, क्योंकि मेरी बहन और भाई ने कहा हम हॉस्पिटल नहीं भेजेंगे, क्योंकि हॉस्पिटल जो जाता था उस वक्त वापस नहीं आता था, तो घर में ही हाँ, ये हॉस्पिटल। भी एक सिलसिला था कि भाई वो सिरिंज लगा रहे हैं, मार अब वो देंगे। घर में ही हॉस्पिटल बन गया था, और मुझे इतना याद है कि मेरे कमज़ोरी से ना यहाँ पर कैनोला लग रहा था, ना यहाँ लग रहा था, ना यहाँ, मुझे यहाँ लगाया गया था कैनोला, और ये बहुत तकलीफ दे जगह होती है, यहाँ पे बहुत हड्डी तकलीफ के पास हड्डी के होता है। पास ना बहुत तकलीफ दे होती है। मेरी आँख खुली तो कैनोला यहाँ लगा हुआ था, और मेरा दरवाज़ा बंद था लेकिन खिड़की खुली थी, तो पहले तो मैं समझी शायद मैं आलम बरज़ख में हूँ कि अल्लाह मियाँ ने कहा कि इसकी आँख खुले तो ये एकदम से शॉक में ना चली जाए। तो फिर मैं आहिस्ता आहिस्ता खिड़की के पास गई। उस वक्त तक मेरा ये वेट लॉस पाउडर बन चुका था, लेकिन मेरा नाम नहीं मुझे आ रहा था। मैं खिड़की के पास गई और मैंने चिड़ियों की चहचहाहट को सुना। जब चिड़ियों की चहचहाहट को सुनने के बाद एक आवाज़ आई तो लगा कि नहीं, मैं अभी भी ज़मीन पर हूँ। देखा आसमान की तरफ आंखें उठा के, तो रब ताला का शुक्र अदा करते हुए रब से वादा किया कि अब की बार ज़िंदगी ख़ुद के लिए जीऊँगी। ये मैं आपसे वादा करती हूँ, इट्स गोइंग टू बी मी फर्स्ट। वाह, वहाँ पे मी आया। ठीक है, तो ये वेट लॉस का भी, और इसके रिजल्ट अल्हम्दुलिल्लाह लोगों से मेरे क्या क्लाइंट्स feedback? पूरी दुनिया में हैं, इंक्लूडिंग यूके, यूएस, जर्मनी, दुबई, सऊदीया, कनाडा। मैं वर्चुअली डाइट कोचिंग करती हूँ, और साथ साथ मेरी जो ये वेट लॉस पाउडर का है, क्योंकि ये 100% हर्बल है, इसमें कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो आपको नुकसान दे। ओवर द काउंटर एसिडिटी की दवा लेने वाले अमेरिका में इतने मेरे क्लाइंट्स हैं जिन्होंने 10 साल से एसिडिटी की दवा ले रहे थे। आपको है, आप इंशाल्लाह लीजिए, नाश्ते से पहले एक चाय का चमचा, रात को खाने से पहले एक चाय का चमचा, आपको खुद पता चलेगा आपकी बॉडी में क्या चेंजेस आ रही हैं, क्योंकि ये हर्बल है, इसलिए आपकी बॉडी में जाके किस तरह असर करती है ये हफ्ता ही बताएगा आपको। तो मतलब ये है कि अभी लोगों को जो है ना वो ब्लैक कॉफी पी के अपनी आंतें सुकड़ाने से बेहतर है कि कुछ हर्बल चीजें हर्बल लें। लें, बिल्कुल नहीं, मेरे लें। दोस्त ने लिए कॉफी, ब्लैक कॉफी पिए जा रहा फिर उसको 1 महीना अस्पताल में गुजारा, क्योंकि वो उसकी आंतें सुकड़ गई थी, मैदा सुकड़ गया था, डॉक्टरों ने बोला कि अभी तेरा सही वाटर वेट लॉस रिटेंशन एक्सट्रीम हो जाता है आपका, और उतना पानी नहीं पी रहे होते, Dehydration हो जाती है, डिहाइड्रेशन हो पानी जाती आप है, पीते बिल्कुल नहीं ऐसा ही है। रेंज में सारी चीज़ें अल्हम्दुलिल्लाह, हमारा एक जामे हयात है जिसमें ख़यार शंबर है, अब रेशम है और गाव ज़बानी, तमाम खमीरा हैं जिनको डाला गया, और साथ में प्योर चांदी भी है। तो हमारा एक है जिसका नाम है जामे हयात, वो इम्यून सिस्टम के लिए वो भी हर्बल है। अच्छा। एक हमारा जो है हमारा हेयर ऑयल है, वो स्ट्रेस के लिए बहुत अच्छा है, और हेयर फॉल और हेयर ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा है। ऐसा तो नहीं होगा कि अभी दीवारों के ऊपर माया दवाखाना का जो है ना नहीं चकिन नहीं मकिन नहीं शुरू हो नहीं नहीं नहीं, आपका mayaKhanOfficial.com वेबसाइट है। अच्छा। आप वहाँ जाओ, आप वहाँ पे देखो, आप इंस्टा पे जाके देखो, आपको नज़र आएगा कि लोगों के, मैंने उसकी रिव्यूज अच्छे हैं। व्यूज़ से ज़्यादा जो कनेक्शन हमारा है ना लोगों के साथ, जो जब मैं, ट्रस्ट का जो है ना एक बड़ा असल में आपको पता है 4 साल हो गए हैं, अभी तक मैंने कीमतें नहीं बढ़ाई हैं।
حالانکہ میری چیزیں باہر سے آتی ہیں, انگریڈینٹس باہر سے آتے ہیں. اور یہ جو ہم نے شروع کیا ہے جو آپ کے ہاتھ میں ہے, اس کا نام ہے ٹھنڈک. یہ میں ویورز کو بھی بتاؤں گا نا, دیکھیں یہ میرا پرابلم ہے, دیکھیں ہاتھوں کے اندر نا یہ گرمی دانے اندر ہی, باہر نہیں پتہ چل رہا ہے, اندر ہی ہے, اندر سکن کے اندر ہے, پتہ نہیں چل رہا ہے, پیسے پاؤں میں بھی ہو جاتے ہیں یہ میرے گرمیوں میں. اور میں پھر سانپ کی طرح جو ہے نا میں جو ہے نا یہ سکن اتارتا ہوں, ہاں اچھاداری ناک کی طرح جو ہے نا میں اپنی سکن اتارتا ہوں, اس کے بعد صحیح ہو جاتے ہیں. تو اس کے لیے آپ نے مجھے سجیسٹ کیا کہ یہ بہترین چیز ہے, یہ آپ کے لیے گرمی میں بہترین چیز ہے. اس کی سب سے, اس کا نام ٹھنڈک ہے, اور یہ میری اماں کو ڈیڈیکیٹ ہے, بیکاز اماں کہتی تھی جب بھی بچے پیار کرتے ہیں مجھے ٹھنڈک ملتی ہے. تو میں نے اس کا نام ٹھنڈک رکھا ہے. اس کو میں 10 سال سے اپنے لیے استعمال کر رہی تھی. پچھلے سال لانچ کرنا تھا, اماں چلی گئیں. اس سال میں نے اس کو لانچ کیا ہے ماموں کی ڈیتھ کے بعد. اور اس کا ہر چیز نیچرل ہے, چھوٹے بچوں سے لے کے ہر بندہ استعمال کر سکتا ہے. چھوٹے بچے بھی استعمال کر سکتے ہیں, جیسے کہ بچوں کو یہ ڈائپر وائپر میں ریشز ہو جاتے ہیں, فیس پر, باڈی پر, ہاتھوں پہ, منہ پہ, کہیں بھی, گردن پہ. میں اس کے بغیر شوٹ پہ کہیں نہیں جاتی ہوں. اس کو لگانے کے بعد آپ لو میں بھی چلے جائیں گے نا, آپ کو لو کی جو ہوا ہے وہ آپ کو گرمی لگنے ہی نہیں دے گی, اور آپ کو گرمی سے بچائے. اور یہ کتنی دیر تک اس کی جو 1 سے 2 گھنٹے تک آپ کو فیل ہوگا. اسکن ٹو اسکن ویری کرتا ہے, لیکن 40 to 45 منٹس ڈیفینیٹلی. 50 ml اور 500 ml میں ہے. 500 ml اس کا ریفل ہے, لیکن یہ کیری آن کے لیے اس لیے بنایا ہے کہ بیگز میں, پرس میں, بیک پیکس میں آرام سے کر سکتے ہیں. بالکل ایسا ہی ہے, اسکول میں بچے بھی لے بالکل جائیں, ایوری بڈی کین یوز اٹ, ایوری بڈی. اور خوشبو کی خوشبو ہے, اور جو نا ٹھنڈک کی ٹھنڈک نیچرل ہے نا, اس میں کوئی کیمیکل نہیں ہے. اس میں روز واٹر ہے اور اس میں پودینہ ہے. اچھا, تو اس میں کوئی ایسی چیز ہے ہی نہیں جو آپ کو ہارم کرے گی. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, یہ میں یوز کروں گا. اور آپ نے مجھے فیڈ بیک اور میں نے فیڈ بیک آپ کو بھی دینا اور لوگوں کو بھی پھر دینا ہے. اور بالکل ہی, اور آپ کو جو ہے نا آل دا بیسٹ کہ جو ہے نا آپ جو ہے نا یہ والا بزنس بھی, اور مجھے یقین ہے کہ آپ اس میں انشاءاللہ بہت کامیاب ہوں گی, کیونکہ آپ کی نیت بہت صاف ہے. تو آپ لوگوں کو کیسا لگا آج کا ہمارا ایپیسوڈ؟ آپ کا بہت بہت شکریہ. آج ہمارے ساتھ جو گیسٹ تھیں, آپ نے دیکھا بھی, میں ویسے ہی نہیں بولتا, آپ لوگوں نے آج دیکھ بھی لیا ہے کہ پازیٹیوٹی کا برج خلیفہ ہے, واقعی ہے. اور آج کے ایپیسوڈ میں مجھے تو ذاتی طور پہ بہت مزہ ہے اور بہت کچھ سیکھنے کو ملا. ان سے جب بھی ان کے ساتھ میں بیٹھتا ہوں یا ان کے ساتھ میں نے کبھی کوئی کام کیا ہے, کسی شو میں بیٹھے ہیں, تو ان سے بڑا کچھ سیکھنے کو ملتا ہے, اور میں سیکھتا رہتا ہوں, اور مجھے بڑا مزہ بھی آتا ہے آنیسٹ لوگوں کے ساتھ بات کرنے میں. آج کا ایپیسوڈ آپ کو یقیناً بہت اچھا لگا ہوگا, مزہ آیا ہوگا, اور اگر اچھا لگا ہوگا تو پلیز شیئر کریں اور سبسکرائب کریں, اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کیجئے گا. اگر اچھا لگا, نہیں اچھا لگا تو کوئی بات نہیں, اگنور کرو, آئی ڈونٹ مائنڈ. آپ مجھے اجازت دیں اور مایا خان کو بھی ساتھ ساتھ میں اجازت دیں. اگلے ہفتے تک کے لیے, اگلے ہفتے میں ایک نئے گیسٹ کے ساتھ دوبارہ آؤں گا. تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں اور اپنے گرد و نواح کا بہت سارا خیال رکھیں. اللہ حافظ.